So welcome to the students. In this lecture मैं जो आपका है न्यूमेरिकल सेशन जो है इसका करूँगा. न्यूमेरिकल्स हम इसमें सॉल्व करेंगे. जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल किया था, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बट फॉर प्रैक्टिस ये जो पूरा लेक्चर होगा इसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. राइट, न्यूमेरिकल्स ऑफ regarding the shear stress in the beam. You understand? So let us say the first problem which is written here. What is the problem? A rectangular beam कौन सा है? This is the rectangular beam, 100 mm wide and 250 mm deep. तो एक क्रॉस सेक्शन इसका ड्रॉ कर लेते हैं. तो suppose this is the cross section. This is the cross section of the beam and width कितना दिया है इसका? 100 mm. 100 mm is the width and 250 mm is the depth, right? So this is the cross section, rectangular cross section of the beam. The width of the beam, this is given as 100 meter wide and the depth is 250 mm deep, is subjected to a maximum shear force of 50 kilonewton. तो इसमें maximum shear force भी दिया. पहले ये न्यूट्रल एक्सिस ले लें. राइट, सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस and A. This is neutral axis. You understand? So shear force is given as 50 kilonewton. So shear force, यहाँ पे लिख लीजिए, shear force as this is 50 into 10 raised to power 3 Newton. You understand? So this is the problem. You understand? So what we have to find out? Average shear stress. So this is very simple problem. फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है जहां पे कोई डिफरेंट चीज नहीं है. तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टाउ एवरेज. टाउ एवरेज मीन्स एवरेज shear stress and this is equal to as shear force upon A. A is the area of the cross section. So this is 50 into 10 raised over 3 and area क्या होगा? Width is 100 and depth is 250. right? तो ये आपका टाउ एवरेज आएगा. कैलकुलेट करो हाउ मच द टाउ एवरेज इज. So this is 50 this is 2 Newton per mm square. So this is 2 Newton per mm square. You understand? This is your average shear stress. So first thing we have calculated. Second, he has asked us that's the maximum shear stress. Second is maximum shear stress for rectangular cross section में maximum shear stress, that is tau max. अगर आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, so in that case maximum shear stress, this is equal to 3/2
into tau average. You understand? 3/2 into tau average, and average shear stress we have calculated. So this is equal to 3/2 into 2. So this becomes 3 Newton per m square. You understand? So this is 3 Newton per mm square. So tau max भी आ गया. And the next one that we have to find out, third, what we have to find out, third, shear stress at a distance of 25 mm above the neutral axis. So y की जो वैल्यू है 25 mm, राइट. तो इसको एक तो हम इक्वेशन के हिसाब से वी कैन कैलकुलेट इट. तो जो इसका इक्वेशन होगा, जो हमें इक्वेशन जहां पे निकालना होगा, तो shear stress ऐसे लिखें आप, shear stress at a distance at a distance 25 mm above and a. So this is equal to, ये जो एक जे इक्वेशन है, ये भी आप जा सकते हैं, s अपॉन 2 d स्क्वायर 4 minus y, right? Shear stress at a distance of 25 mm above neutral axis y square, right? So this is the equation. तो इसमें आप वैल्यू पुट कर ले. I की क्या वैल्यू आएगी? This is a rectangular cross section. So I, this is equal to BDQ by 12, right? तो आप जो सारी चीजें इसमें पुट कर ले, तो S आपको दिया है. S कितना है? S आपका 50,000 कर लीजिए, 50 किलो न्यूटन है ना ये, राइट? अपॉन 2 into I BDQ by 12. Moment of inertia in case of rectangular section. Rectangular section के केस में moment of inertia, this is equal to BDQ by 12. You understand? ब्रैकेट में डाल दीजिए d square upon 4. What is your d? D is 250 mm. So this is आपका आ जाएगा 250 square upon 4 minus y क्या है 25 square. You understand? तो उसको आप कैलकुलेट कर ले. b और d की वैल्यू भी यहां पे पुट कर ले आप. Therefore क्या जाएगा 50,000 इंटू 6 ऊपर चला गया, 6 अपॉन b कितना है 100 इंटू 250 क्यूब, राइट? और अंदर वाली यही चीज रहेगी आपकी, राइट? 250 स्क्वायर बाई 4, 250 स्क्वायर बाई 4 माइनस 25 स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? इसे आप सिंप्लीफाई कर लें.
सो आफ्टर सिंप्लीफाई टाउ की वैल्यू आएगी, सो टाउ इज इक्वल टू दैट इज 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250 का क्यूब, सो एज पर माई कैलकुलेशन आप भी चेक कर लीजिएगा 2.88 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द shear stress at a distance 25 mm from the neutral axis, you understand। तो एक तो आप इस तरीके से ये इक्वेशन ये याद रखिएगा, ये वाली इक्वेशन, you remember this equation। In case of the rectangular cross section, if you want to calculate the shear stress at some distance from the neutral axis, you can use this equation for calculating this। And the second method, जिस तरीके से हमने ये इसको ड्राइव किया था, तो सेकंड मेथड में देखिए, सेकंड मेथड से भी इसको कर लेते हैं हम। सो अल्टरनेटिव वे, इसको मिटा दीजिए आप। सो उस केस में हमने क्या किया था, जहां पे हमें निकालना है वहां पे आप क्या करेंगे, एक लेयर ले लेंगे, राइट। सपोज आई विल टेक दिस लेयर, राइट, दैट इज x द लेयर। दिस शुड बी एट द डिस्टेंस ऑफ 25 mm। ये दिया है ना, हमें कहां पे निकालनी है, डिस्टेंस 25 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 25 mm, यू अंडरस्टैंड, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब ये वाला एरिया ले लिया, मैंने कहा था कि जो आपकी लेयर होगी, लेयर के ऊपर वाला एरिया वी हैव टू टेक इट, राइट। और हमें वी हैव टू फाइंड द shear स्ट्रेस, तो हमें shear स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, shear स्ट्रेस, राइट। सो shear स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो क्या होगा, इसका फार्मूला क्या है, यू नो दैट टाउ इज इक्वल टू s इंटू a by var upon 3i, you understand, upon b into I, right, b into I or I into v, you understand। Tau is equal to s a var, this is I into v or b into I, you understand, where v is the width of the layer। v क्या है, ये जो लेयर आपने लिया है, थिन लेयर, b is the width of this thin layer। तो इस केस में जो b की वैल्यू है, देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें b चाहिए, एक हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, दैट इज BD3/12। ये भी आपको मालूम है, जो विड्थ ऑफ द लेयर होगी जहां पे, तो b आपका है, यह क्या है, 100 mm, बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो विड्थ आपकी 100 है, तो विड्थ ऑफ द लेयर दैट इज आल्सो 100 mm। तो एरिया, एरिया हमें कौन सा लेना है, ये वाला एरिया लेना है जो मैंने शेड किया है, एरिया। तो एरिया जहां पे क्या आएगा, देखिए जहां से लेके जहां तक तो 100 है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। सो टोटल डेप्थ, दिस इज 250, टोटल डेप्थ कितना है, दिस इज 250। Neutral axis is here and neutral axis at the center, centroid of this cross-sectional area। तो मीन्स ये जो आपका डिस्टेंस है जहां से लेके जहां तक न्यूट्रल एक्सिस का, ये कितना हो जाएगा, 125 mm। और इसी तरीके से ये ऊपर वाला भी जो डिस्टेंस है जहां से जहां तक,
ये कितना है 125 mm, राइट। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, हम जो ये ले रहे हैं जहां से कितना है न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm अबव, तो इट मींस जो जे आपका डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस जे कितना हो जाएगा, जे भी आपका कितना होगा 100 हो जाएगा। दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर 100 mm, यू अंडरस्टैंड। जहां से लेके जहां तक 125 है, 25 हम ऊपर लिया तो ये 100 mm। तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या आएगा 100 into 100, यू अंडरस्टैंड। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, दैट इज 100 into 100 mm square, यू अंडरस्टैंड। ये भी अपना निकल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द बाई वार, हमें क्या निकालना है बाई वार। अब देखिए बाई वार जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस, ये जो शेडेड एरिया है, द सेंट्राइड ऑफ द शेडेड एरिया, फ्रॉम द सेंट्राइड ऑफ द शेडेड एरिया टू द न्यूट्रल एक्सिस। सपोज मैं कहता हूं सेंट्राइड शेडेड एरिया का ये है, राइट, इट इज एट द सेंटर। ये कहां पे है, ये सेंटर पे है। और जहां से लेके जहां तक कितना आपका डेप्थ था या लेंथ था, हाइट थी 100, तो इट मींस ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया 50 mm, और जे कितना डिस्टेंस हो गया 25 mm। सो इट मींस द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द centroid of this area, that is 75 mm, and that distance is called the y-var, you understand। हमें y-var निकालना है, तो y-var is the distance from the centroid to the neutral axis, you understand। तो y-var आ गया जहां पे 50 plus 25 75 mm, you understand। ये आपको क्लियर हो गया। ये मैं आपको अल्टरनेट तरीके से निकाल रहा हूं, एक तो मैंने इस तरीके से आपको निकाल के दे दिया, तो ये आप कह सकते हैं दिस इज द अल्टरनेट मेथड। मींस आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से मैं निकाल के दे रहा हूं जो हमने फार्मूला ड्राइव किया। अब देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यू आ गई, और आई जो है ये क्या है बी डी क्यू वाई 12, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन बी डी क्यू, बट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन इसका होल का हम लेंगे तो ये आ जाएगा 100। बी क्या है 100, विड्थ कितनी 100 है, डेप्थ कितनी है 250, 12, यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट कर ली, तो अब हमें क्या करना है इसमें अपने पुट करना है, तो इसको तो हम मिटा देंगे। So therefore shear stress at a distance, shear stress at a distance by from neutral axis, right। डिस्टेंस y या 25 mm लिख लो, shear stress at a distance 25 mm लिख लो, बाई क्या है, राइट। तो अब ये फार्मूला है इसमें आप पुट कर लीजिए। सो टाउ इज इक्वल टू एस, क्या है व्हाट इज एस 50,000 ए, व्हाट इज ए 10,000, right। y-var is 75 divided by I क्या है 100 into 250 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 है, तो 12 को आप ऊपर ले जाइए आप, एंड B is the width 100,
right? So now calculate its value. $2.88. So same thing we have got. So this is 2.88 Newton per mm square. You understand? So these are the two ways to find the problem. एक तो आप फार्मूला लिखेंगे. If we have to find the shear stress at a distance y from the neutral axis, s is equal to tau is equal to s upon 2i divided by, in the bracket लिखिए d square by 4 minus y square. एक तो ये इक्वेशन आप याद रखें तो उस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, यू विल गेट द आंसर. एंड द सेकंड वन, दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड. जिस तरीके से मैंने इसका डेरिवेशन किया था रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो उस तरीके से भी वी कैन कैलकुलेट. वी हैव टू टेक द विड्थ ऑफ द लेयर. तो विड्थ ऑफ द लेयर, दिस इज रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो जितना इसका विड्थ होगा क्रॉस सेक्शन का उतना ही लेयर का विड्थ होगा. तो बाकी ये चीजें वी हैव टू फाइंड आउट. shear force that is given, area we have to find what area of this shaded portion. ये जो width of the layer लिया है, इसके ऊपर वाला जो portion होगा, we are considering here the above portion, even we can take the lower portion also, but जहां पे हम लेयर के ऊपर का पोर्शन लेंगे तो उसका एरिया हमें, जो आपका शेडेड पोर्शन है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस. एंड देन y var is the distance from the neutral axis to the centroid of the shaded area. कहां से? न्यूट्रल एक्सिस से जो शेडेड एरिया का सेंट्राइड होगा उस तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द y var. Moment of inertia in case of a rectangular section, this is BD cube by 12, where V is the width and D is the depth of the cross section. And you put all the values here and then you get the answer. So these are the two ways. This is the alternative method. Either you can solve the problem by using this method or you solve the problem जैसे मैंने आपको पीछे बताया था. You understand? Now एक प्रॉब्लम हम और लिखेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे. So let us say this is the second problem. This is the second problem which I have taken here. You understand? So let us understand the problem first. A timber beam. This is the timber beam of rectangular section. तो इसमें क्रॉस सेक्शन क्या दिया है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है. इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स. इस तरीके से हम इसका बना लेते हैं. ये आपका बीम है, ये फ्रंट व्यू डाल रहा हूं. दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द बीम. राइट. So this is the rectangular cross section. इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन है. Is simply supported at the ends, right, and carries a point load at the center. Suppose this is the center, I will say. जहां पे ले लीजिए, ये आपका सेंटर है, तो जहां पे इसका पॉइंट लोड, से W is the point load which is at the center of the beam. The maximum bending stress, तो इसमें एक तो इन्होंने सिग्मा मैक्सिमम दिया है. सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बीम में का कितना है? दैट इज 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड मैक्सिमम shear stress is 1 न्यूटन, और
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. You understand? So find the ratio of the span to the depth. Suppose मैं कहता हूं इसका span जो है कितना है? L है, राइट? तो हमें रेशियो निकालनी है स्पैन टू द डेप्थ. ये इसका बीम का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जस्ट लाइक दिस, राइट? तो ये डेप्थ है, ये आपका विड्थ है क्रॉस सेक्शन का बी. से बी इज द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, डी इज द डेप्थ. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड एल अपॉन डी. Find the ratio of span to the depth. That is, we have to find the ratio L. L क्या है? Span. This is a span, and D is the depth. This ratio we have to find out. You understand? So this is the question. अब इसका कोई जरूरत नहीं है तो उसको मिटा देते हैं. You understand? चलो रहने दीजिए भैया. तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? मैक्सिमम शियर फोर्स, राइट? तो अगर ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये आपका रिएक्शंस आर ए एंड आर बी है. एंड इफ डब्ल्यू इज द लोड एट द सेंटर, सो आर ए कितना होगा यहाँ पे? आर ए, दिस इज डब्ल्यू बाई टू. इसी तरीके से आर बी, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, राइट? आर बी, दिस इज डब्ल्यू बाई टू. तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ गया? व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स इन दिस केस? तो एस जो है, S कितना आ गया? W by 2, right? So this is the maximum shear force, S maximum. You understand? अब हम निकालने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेते हैं. तो अगर हमें निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो कैसे निकालेंगे हम? आर ए कितना है? W by 2. जहां से लेके जहां ले लीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा W by 2, and what is the distance from here to here? If the span is L, the distance from here to here, this is L by 2. That is L by 2, right? So the maximum bending moment, this is equal to WL by 4. You understand? तो इसी तरीके से आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स भी आ गया और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, both you have calculated. You understand this? So let us start the problem now. Just see the problem. What they have given here. Sorry. What they have given here? They have given the maximum bending stress and the मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. तो इसका मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दिया है, तो हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को निकालते हैं. तो पहले मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? टाउ एवरेज. यू अंडरस्टैंड? सो टाउ एवरेज, दिस इज इक्वल टू एस अपॉन ए. यू अंडरस्टैंड? एस कितना है? दैट इज डब्ल्यू बाई 2. और A कितना हो गया? B is the width and D is the depth, right? So this is equal to W upon 2BD. You understand? W upon 2BD. तो मैक्सिमम कितना आ गया? टाउ मैक्स, दैट इज 3 by 2 tau average, or you can say 3 by 2. What is tau average? W upon 2BD. You understand? So this is equal to 3W for, you understand? But you know, tau max is given here 1 Newton per mm square.
तो इसकी जगह अगर मैं पुट कर दूं टो मैक्स की जगह, दिस इज 1 इंटू 3W 4VT, राइट। आर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W अपॉन VD, दिस इज इक्वल टू 4/3, दिस इज इक्वल टू 4/3, यू अंडरस्टैंड। तो एक ये आप इक्वेशन रख लीजिए, इसका आगे यूज होगा आपका इक्वेशन का। तो जहां से तो हमें यही मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, वेट अपॉन एरिया, this is equal to 4/3. You can say this is your equation number first. Understand? अब दूसरा इसने दिया है bending stress, right? So he has given the bending stress. तो इसको मिटा देते हैं हम। So bending stress, maximum bending stress क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम So sigma maximum is equal to maximum bending stress. This is equal to m upon y upon E upon I. M upon I is equal to sigma upon y. पहले ये इक्वेशन लिख लीजिए, m upon I sigma upon y, राइट। तो जहां से हम सिग्मा मैक्सिमम निकाल सकते हैं, क्या होगा, m मैक्सिमम y मैक्सिमम अपॉन I, राइट। ये हमारा इक्वेशन में जहां से आप देखिए सिग्मा मैक्सिमम, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज आई थिंक 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसकी जगह आप 12 डाल दीजिए। m मैक्सिमम WL अपॉन 4 बाई मैक्सिमम, इफ d इज द, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो बाई कितना होगा, d/2 बाई मैक्सिमम, दैट इज d/2, यू अंडरस्टैंड। सो बाई मैक्सिमम जहां पे क्या आएगा, जहां पे लिख लीजिए बाई मैक्सिमम, अगर आपका d डेप्थ है तो बाई मैक्सिमम d/2, सो दिस इज d/2 and I, this is BD/12 because this is a rectangular cross section, and in case of rectangular cross section moment of inertia is this much. So this is equal to 12 into जे 12 ऊपर चला जाएगा, so 12/8 ऐसे लिख सकते हैं, 12/8 into WL upon V, right? WL upon BD square. So 12/8, this is equal to how much? 1.5, है ना? This is right. इसको इधर लिखें, ये आप इक्वेशन याद रखिएगा, W अपॉन BD दिस इज इक्वल टू 4/3, इधर ही कर लेते हैं हम। सो ये 12 का 12 तो ऐसे ही आया, इज इक्वल टू 12/8 कितना हो गया, 1.5, दिस इज 1.5, यस, इनटू, अगर हम इसको अब थोड़ा लिखें, W इंटू L, ये तो ऐसे ही रहेगा। नीचे वाले को अगर हम, क्योंकि हमें L अपॉन D की रेशियो निकालनी है, जब BD स्क्वायर है, तो अगर मैं D एक सिंपल कर लूं, जहां पे इस तरीके से लिख लूं मैं,
बी इंटू डी कोई फर्क पड़ा, राइट, बी इंटू डी बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस एल अपॉन डी रेशो, ये तो निकाली है यहां से, एल अपॉन डी रेशो वी हैव टू कैलकुलेट। तो जे आपका जहां पे आ गया, इसको इधर से ले आए, दैट इज 12, दिस इज इक्वल टू 1.5 W अपॉन बी डी कितना है 4/3। तो जे चीज जो है दिस वन W अपॉन बी डी, इसकी जगह मैं 4/3 लिख सकता हूं, यस 4/3 राइट इंटू L/D, अंडरस्टैंड। तो therefore L upon D, this is equal to 12 to 3, 1.4 into 4, राइट। तो कितना आ गया ये, कैलकुलेट करो। So L upon D, this is equal to 6. तो L upon D कितना आया, ये रेशो 6 को, यू अंडरस्टैंड, ये आपकी प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर सेकंड, यू अंडरस्टैंड दिस। हमें क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पैन अपॉन डेप्थ, एंड इन दिस क्वेश्चन सिग्मा मैक्सिमम इज गिवन, टाउ मैक्सिमम इज गिवन, यू अंडरस्टैंड। तो हमने टाउ मैक्स निकाला, टाउ मैक्स की वैल्यू गिवन थी, उसका इक्वेशन बनाया, वहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला, देन वी हैव यूज्ड द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, एंड बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन में से भी हमें बेंडिंग स्ट्रेस दिया था, तो जहां से जो हमें इक्वेशन मिली, बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव गॉट दिस L upon D, this is equal to 6, you understand। so this is your question number second। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करते हैं इसका। So let us start, this is the problem number third। अब देखिए, a simply supported beam, this is also simply supported beam, wooden, of span 1.3 मीटर। तो एक बीम ले लीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, वुडन बीम। तो इसका स्पैन कितना है, इसका स्पैन इसने दिया है 1.3 मीटर, यू अंडरस्टैंड। हैविंग क्रॉस सेक्शन 150 mm, तो ये बीम भी, इसका भी क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा, इसमें भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया है। सो दिस बीम इज हैविंग द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। विड्थ कितना है 150 mm, एंड डेप्थ है इसका 250 mm, राइट। सो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम है जिसका विड्थ दिया है, ये आप क्रॉस सेक्शन है इसका, राइट। सो सिंपली सपोर्टेड है,
तो हम इसको शो करेंगे, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सो देयर इज जस्ट टू सपोर्ट्स हियर, और पॉइंट के ऊपर सेंटर लोड है, लेट अस से द लोड इज W। तो ये आपका RA है, अगर तो ये RB मीन्स बीम आपकी AB है। सो दीज आर द रिएक्शंस, और ये RA कितना आएगा, W/2, RB W/2। तो शेयर फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स, दिस इज इक्वल टू W/2। यू अंडरस्टैंड। तो जहां से हमें क्या किया, हमने रिएक्शंस निकाले और हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स हमें मिला। यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इन द सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट Mmax क्या होता है, WL/4। ये पीछे भी आपको बताया था, Mmax WL/4, राइट। तो हमारे पास W तो W ही है, बिकॉज L कितना हो गया, मीटर है, इसको आप 1.3 इंटू 1000/4। सो M मैक्सिमम निकाल लीजिए, कैलकुलेट करें कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Mmax। दिस इज 325 W। So this is 325 W न्यूटन। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी आ गई Mx की वैल्यू। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी हमने निकाल लिया, मैक्सिमम शेयर फोर्स भी हैव कैलकुलेटेड। अच्छा आगे देखिए, तो पॉइंट लोड W at the center, this I have taken in the center here. The permissible stresses are 7 Newton per mm square and bending in bending। तो बेंडिंग का जो परमिसिबल स्ट्रेस है, आप कह सकते हैं मैक्सिमम ही हो गया। परमिसिबल मींस मैक्सिमम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज गिवन एज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और टो मैक्स भी जो आपको दिया है इसने, that is 1 Newton per mm square। You understand? But we have to find out, we have to find the value of W। Determine क्या करना है, हमें W को determine करना है। You understand? So weight हमें determine करना है। You understand? So this is the problem। You understood this problem? Yes। Now हमें weight find out करना है। First we will find out the weight or determine the weight while taking the bending stress। In case of the bending stress अगर हम लेंगे उस वक्त weight W कितना, W की क्या वैल्यू आएगी, and when we will take the consider the shear stress, maximum shear stress, उस वक्त आपकी weight की क्या वैल्यू आएगी। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के केस में weight का क्या वैल्यू डिटरमिन, हमें वैल्यू डिटरमिन करना है। shear स्ट्रेस के केस में W की वैल्यू को हम डिटरमिन करेंगे, और जो वैल्यू लेस देन, इन दो वैल्यूज में से जो वैल्यू लेस होगी वो आपका वेट आपका होगा। यू अंडरस्टैंड। तो हमें वो आपका क्या होगा, सेफ लोड ऑफ द W। कि इतना लोड जो है पर्टिकुलर बीम, इतना वेट पर्टिकुलर बीम जो है उसको रेजिस्ट कर सकती है, दैट इज द सेफ लोड। सो सेफ लोड को कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज ही हैज गिवन द बेंडिंग स्ट्रेस, कि बेंडिंग स्ट्रेस इस बीम में इतना है और आपका शियर स्ट्रेस इस बीम में इतना है। यू अंडरस्टैंड। तो बेंडिंग स्ट्रेस के बेस के ऊपर हम इसका लोड कैलकुलेट करेंगे बीम का, और फिर हम शियर स्ट्रेस को कंसिडर करके उसका हम लोड को कैलकुलेट करेंगे, और जो लेस होगा इन दो लोड में से, दैट इज यू कैन से दैट इज द सेफ लोड ऑफ द बीम। यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो ये हमने चीजें निकाल ली। अब सबसे पहले हम क्या करें, पहले हम बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर
इसकी सेफ लोड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यू अंडरस्टैंड? So first we will calculate value of W for considering the bending stress, right? तो इसके लिए हम क्या करें, पहले हम क्या करते हैं, यूजिंग बेंडिंग स्ट्रेस, using bending stress equation. What is my bending stress equation? That is M upon I. This is equal to sigma upon pi. You understand? Therefore, sigma is equal to M by upon I. यही है ना? तो सिग्मा मैक्सिमम होगा M maximum by maximum upon I. You understand? That you can say, अगर सिग्मा मैक्सिमम की बात करो, this is equal to M y maximum upon I. You understand? So sigma maximum is given to us. That is how much? Yes, 7. So therefore 7. This is equal to U. M कितना है? This we have calculated 325 W. 7. 7. This is equal to 325 W. Y कितना होगा? D by 2. What is D? This is 250. D is 250 and this is equal to 250 by 2. You understand? 250 by 2, that is 125. 125. I क्या है? BD cube by 12. In case of the rectangular cross section, जैसे आपको बताया, तो V क्या है? V is given 150. मैं इधर लिख लूँ I का वैल्यू, कंफ्यूज ना हो जाना आप। I V D Q by 12, राइट? तो V क्या है? V is 100. 100 लिख लीजिए। D क्या है? 250 Q by 12. You understand? 250 Q by 12. क्या आप दिस इंप्लाइज ऐसे कर सकते हैं? 325 W here में 125 into 12 upon 100, 250 Q, राइट? तो जहां से आप क्या करें, ये 7 है आपका, जहां से आप W की वैल्यू निकल जाएगी। Therefore W is equal to what is 7 into 100 into 250 Q, right, upon 325 into 125 into 12, right? इसे सॉल्व कर लीजिए। So this is the value of W. That is 7 into 100 to 250 Q. Yes. So let us solve this. 7 .
जहाँ पे आपका 100 नहीं था, वेट थे 150, सही इसका आंसर नहीं आना था, 150 हो जाएगा ये। जहाँ पर भी आपका 150, राइट, और जे भी आपका 150, यू अंडरस्टैंड। मैंने वेट इसका 100 ले लिया, 150 है, तो इसको आप कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद इसका वेट जो आपका आएगा, दिस इज 33653.8, तो इसका वेट आया सेफ लोड 33653.8, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आ गया सेफ लोड डब्ल्यू, ये आपकी आ गई डब्ल्यू की वैल्यू, यू अंडरस्टैंड। तो ये हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली व्हेन वी हैव कंसिडर द बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस अगर हम कंसिडर करें तो उस वक्त जो सेफ लोड की वैल्यू होगी ये आएगी, यू अंडरस्टैंड। नाउ द सेकंड वन, वी विल कंसिडर दिस shear stress. राइट, तो टाउ एवरेज क्या होगा? टाउ एवरेज S अपॉन A, एंड व्हाट इज योर S? WI2। A क्या है? 150 इंटू 250, यू अंडरस्टैंड। क्या आ गया टाउ एवरेज, यू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज योर दिस टाउ मैक्सिमम? 3/2। टाउ मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज। टाउ मैक्सिमम 3/2 टाउ एवरेज, राइट। तो टाउ एवरेज की वैल्यू जो है फाइंड आउट। So this is equal to 3/2 into W, 2 into 150 into 2, right? ये आपका आ गया टाउ मैक्सिमम। So this is the value of the tau maximum you have find out. But tau maximum this is given as 1, उसको मिटा लीजिए आप। So tau maximum जो आपको दिया है, टाउ मैक्सिमम की क्या वैल्यू दी है? टाउ मैक्सिमम की वैल्यू दी है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2 इंटू W to 150 and 250, यू अंडरस्टैंड। हमें क्या निकालना है? W, वी हैव टू फाइंड W, therefore W is equal to जाएगा 4 इंटू 150, 250, 4 इंटू 150 इंटू 250 अपॉन 3।
So 50,000. So this is W कितना आ गया? राइट तो अगर हम शेयर स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं, सो इन द कंसिडरेशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस वी विल गेट द सेफ लोड, वैल्यू ऑफ द सेफ लोड, दिस इज इक्वल टू 50,000 न्यूटन। और जो पहले केस में हमने फाइंड आउट किया था उसमें 33 समथिंग, तो वो वाला जो इन केस ऑफ बैंडिंग स्ट्रेस जो आपका वैल्यू था वो आपका वैल्यू क्या था? सेफ होगा। तो सेफ वैल्यू क्या थी आपकी? वो जो बैंडिंग स्ट्रेस में आई थी 333 कितना था? 683 समथिंग लाइक दिस, जी चेक कर लीजिएगा 683.8, बिकॉज दिस वैल्यू इन केस ऑफ द बैंडिंग स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ द सेफ लोड इज लेस, सो वी विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ द सेफ लोड। सेफ लोड की कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे? जो वैल्यू इन दो वैल्यू में से कम होगी। तो बैंडिंग स्ट्रेस का हमने कैलकुलेट करके बताया, दिस इज 50,000 न्यूटन। और जो बैंडिंग स्ट्रेस था उस केस में हमने जो सेफ लोड की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो इतना था, चेक कर लीजिएगा 33 समथिंग लाइक दिस। सो कहने का मतलब है कि ये जो बैंडिंग स्ट्रेस के केस में हमारी सेफ लोड की वैल्यू जो थी वो क्या थी? कम थी एज कंपेयर टू shear stress. So safe load on the beam कितना होगा? J वाला, and this is answer. You understand? तो J आपका आंसर होगा। तो J आपको क्वेश्चन J वाला भी आपकी टाइप कर ली कि अगर आपको सेफ लोड फाइंड आउट करना है, दो स्ट्रेसेस दिया है, एक बीम है आपकी, कोई भी पर्टिकुलर बीम है, कैंटिलीवर बीम हो सकता है, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है, जहां पे तो हम सिंपली सपोर्टेड का ही प्रॉब्लम लिया। तो उस बीम के ऊपर एक वेट जो है, लोड जो है वो एक्ट कर रहा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेफ लोड। अगर उसका बैंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बैंडिंग स्ट्रेस दिया है कि उस बीम का परमिसिबल बैंडिंग स्ट्रेस इतना है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इतना है, तो उस केस में हमारा सेफ लोड क्या होगा? उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जहां पे हम दो कंडीशंस लेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द सेफ लोड ऑन द परमिसिबल लिमिट ऑफ द बैंडिंग स्ट्रेस। तो उस केस में हमारा सेफ लोड कितना आएगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड देन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ द सेफ लोड बाय कंसिडरेशन ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द शियर स्ट्रेस। तो उन दोनों केसेस में हम लोड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो लेस वैल्यू लोड का आएगा वो क्या होगा? दैट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द सेफ लोड। यू अंडरस्टैंड? तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। So this is another problem. The problem is same जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था, this is the same problem, only the difference is that here we are taking the circular beam. जो पहली प्रॉब्लम थी इसमें लिया था हमने, that we have taken the rectangular beam. इसमें हमारा सर्कुलर बीम है। तो सर्कुलर बीम से क्या होगा कि जो आपका शेयर स्ट्रेस, जब हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला है इसका वैल्यू चेंज होगा। यू अंडरस्टैंड? एवरेज शेयर स्ट्रेस के लिए तो सेम रहेगा, बट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए इसका फार्मूला चेंज होगा। वो जो शेयर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, इसका भी जो फार्मूला है वहां पे था d²/4 -y² s/2y। तो इस केस में भी जो फार्मूला है, इक्वेशन है, वो आपकी चेंज होगी। बाकी सारी चीजें सेम है, वैसे ही आपने कैलकुलेट करना है, उसी तरीके से आपको जिस तरीके से आपने फर्स्ट प्रॉब्लम को किया था वैसे करना है। तो डायामीटर दिया है क्रॉस सेक्शन का, सर्कुलर बीम है तो डायामीटर दिया है d, दिस इज 100 mm। तो इसका मतलब रेडियस इसका कितना हो जाएगा? 50 mm। यू अंडरस्टैंड? इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स
So shear force is given. S is the shear force. I'm denoting shear force by S. 5 kilonewton, 5 into 10 raised to 3 Newton. You understand? So हमें फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है, जो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है दैट इज टाउ एवरेज. तो इसका तो सिंपल फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन एरिया. तो शेयर फोर्स आपका आ गया 50 इंटू 10⁻³ आप 50,000 लिख लीजिएगा. तो एरिया सर्कुलर है तो उसका एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर. π/4 इंटू डी. एंड व्हाट इज योर डी? दिस इज 100 mm², राइट. तो टाउ एवरेज आप कैलकुलेट करो. टाउ एवरेज की वैल्यू क्या आएगी? What is the value of tau average? This is equal to 0.6366 Newton per mm². So this is 0.6366 Newton per mm². You understand? So this is your tau average. First part we have done. Now the maximum shear stress. Second हमें क्या फाइंड आउट करना है? Second thing we have to find that maximum shear stress. Second, that is tau max. तो tau max क्या होता है? In case of the circular beam, tau max this is equal to 4/3 tau average. So this is 4/3 tau average. तो जी आपका आ गया 4/3. What is tau average? 0.6366. So कैलकुलेट करके देख लें. 4/3 इंटू 0.6366. This is equal to 0.8488 Newton mm². So this is 0.8488 Newton mm², राइट. तो इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस था? एक तो इसका एरिया सर्कुलर है तो इसका नेचुरली फार्मूला π/4 इंटू डी स्क्वायर लगेगा. और सेकंड थिंग, if we have to calculate tau max, so this is 4/3 tau average. But in case of the rectangular cross section, tau max is 3/2 tau average. This is only the difference. And now the third one, we have to calculate this shear stress at a distance (40 mm) from न्यूक्लियर एक्सिस. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें shear stress फाइंड आउट करना है. उसका डिस्टेंस न्यूक्लियर एक्सिस से कितना है? 40 mm. तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है दिस इज 40 mm. यू अंडरस्टैंड? तो इसके लिए एक इक्वेशन आप याद रखिएगा. टाउ शेयर स्ट्रेस इस केस में जब आपको दिया है एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, उस वक्त जो टाउ की इक्वेशन होती है दिस इज s अपॉन 3i r² minus y². So this is the equation of tau at a distance y from the neutral axis. You understand? So इसमें जैसे आपको मैंने बताया y तो 40 mm है और I इसमें क्या होगा? I इसमें होगा π/64 into d raised to 4. You understand? Moment of inertia in case of circular section. Moment of inertia in case of circular section. This is equal to this one. अब आपने क्या करना है? Simply you have to put the values. आप ये सारी values इसमें put कर लीजिए and you will get the answer.
इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। So tau at a distance by from neutral axis, right? So this is equal to s upon 3I r square minus y square. So put the value. So this is equal to s. What is s? This is given as 50,000 लिख लीजिए, right? Upon 3 I क्या होगा? y. What is your d? Circular 100, right? And what is in the bracket? R क्या है? 50 square minus 40 square. You understand? तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए आप इसको सॉल्व कर लो बाय यू। कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए मुझे हाउ मच दिस वैल्यू इज। सो टाउ एट ए डिस्टेंस y from the neutral axis so this is equal to 0.3058। चेक कर लीजिएगा। So check the value and this you will get. You understand? So almost this is the same problem. There is not much here. जो कि जैसे पहले प्रॉब्लम किया था वैसे ही प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें जो फार्मूले हैं सर्कुलर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन है, तो इस केस में आपका जो टाउ मैक्स का फार्मूला है वो भी डिफरेंट होगा। जो आपका shear stress we have to find at a distance y from the neutral axis, उसका फार्मूला डिफरेंट है, ये आप याद रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, दिस इज 5/64 into d4. This is a moment of inertia. So only these three things are different. And tau max तो आपको पता है, tau max this is equal to 4/3 tau ms. You understand? So this problem is over. तो एक प्रॉब्लम और करते हैं। So this is another problem which I have written here. Just understand what is the problem. First we will read the problem and then we will see that what we have to find out. Beam of I section. So cross section of the beam is given, that is I section beam, ये मैंने already ड्रा करके यहाँ पे रखा है, and this is 400 meter deep. So I section का जो इसका डेप्थ है दिस इज 400 mm and 180 mm वाइड। वाइड कितना है? 180 mm। फ्लैंज थिकनेस, जो थिकनेस फ्लैंज की थिकनेस है दिस इज वन फ्लैंज ए हो गया और अनदर फ्लैंज ए। फ्लैंज थिकनेस दिस इज गिवन एज 20 mm ईच। जो फ्लैंज की थिकनेस है दिस इज गिवन एज 20 mm ईच। एंड वेब थिकनेस, व्हाट इज वेब? वेब जे वाला पोर्शन जो फ्लैंज और को कनेक्ट करता है दिस इज कॉल्ड द वेब। एंड वेब जो आपका है उसका थिकनेस दिया है 25 mm। यू अंडरस्टैंड? तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो कर दिया है, वेब का थिकनेस 25 mm। बीम इज सिंपली स्पोर्टेड। ये तो क्रॉस सेक्शन था बीम का, पर जो बीम है वो क्या है? सिंपली स्पोर्टेड बीम है। और उसका क्रॉस सेक्शन क्या था? आई सेक्शन क्रॉस सेक्शन बीम थी, सिंपली स्पोर्टेड बीम है। एंड कैरीज ए कंसंट्रेटेड लोड 800 किलो न्यूटन एट द मिड ऑफ द बीम। बीम के सेंटर के ऊपर में लोड कितना है? 800 किलो न्यूटन। कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द शियर स्ट्रेस एट द सेक्शन।
हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी शियर स्ट्रेस की निकालनी है सेक्शन में। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो न्यूट्रल एक्सिस जो हमें सेक्शन में निकालनी है, तो न्यूट्रल एक्सिस से ये सारा एरिया ले जाइए आप, दिस एरिया एंड दिस एरिया, यू अंडरस्टैंड। तो हमें इसका इंटेंसिटी निकालना है, यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, S इज इक्वल टू A/y बार अपॉन I इंटू V, यू अंडरस्टैंड। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम टाउ मैक्स क्या होगा, SA/y बार I इंटू V, दिस इज द फार्मूला, यू अंडरस्टैंड, दिस इज द फार्मूला। अब देखिए इसमें हमें S का वैल्यू दिया है, शेयर फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट। S का वैल्यू हमें नहीं दिया है, हमें क्या दिया कि सिंपल सपोर्टेड बीम है और ये आपका लोड जो है 800 किलो न्यूटन, दिस इज एक्टिंग एट द मिड पॉइंट। तो देखिए इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया RA, ये आपका रिएक्शन RB, दो रिएक्शन हो गए। ये अगर बीम आपका AB है तो पहले शेयर फोर्स निकाल लेते हैं हम, रेफरेंस लाइन ड्रा कर ले, राइट। तो क्या होगा ये कितना आएगा, ये भी आपका 400 आएगा, 400, राइट, एंड ये कितना आएगा 400 किलो न्यूटन, सिंपली सपोर्टेड है, दिस इज 400 किलो, राइट। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ये 400 किलो न्यूटन एंड 400 किलो न्यूटन। अगर मैं इसकी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करूं तो शेयर फोर्स डायग्राम जो है, देखिए अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो इसमें जो शेयर फोर्स ये आपका 400 न्यूटन ये आपका इधर आ जाएगा, राइट, और फिर ये आपका इस तरीके से ये आपका साइन कन्वेंशन के कारण ये कहां से आएगा, ये नीचे आ जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स आपकी कितनी आई, SF शेयर फोर्स 400, यू अंडरस्टैंड। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम हमने ड्रा किया, तो शेयर फोर्स आपका मैक्सिमम कितना आया, ये 800 मिड पॉइंट के ऊपर था, तो ये क्या होता है W/2 दैट इज 800/2 दैट इज 400 एंड 800/2 400। तो शेयर फोर्स मैक्सिमम इज कितना, 400, दिस वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ कम टू द एरिया। अब हम एरिया के ऊपर आ जाते हैं, तो एरिया हमें कैलकुलेट करना है। हम देखिए A/y बार ही सीधा कैलकुलेट करेंगे, तो A/y बार क्या होगा, A/y बार दिस इज इक्वल टू A1 y1 बार प्लस A2 y2 बार, you understand, A2 y2 बार, you understand this। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें फाइंड आउट करना है, I। तो पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू, I क्या आएगा इसमें, देखिए दिस इज जहां से आउटर टू आउटर ले लीजिए, दिस इज द बिग रेक्टेंगल, और जो बीच वाली है दिस इज द स्मॉल रेक्टेंगल। और अगर हमने इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I BH3/12 बिगर रेक्टेंगल माइनस BH3/12, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर H जो है, जो स्मॉल हाइट, जो स्मॉल हाइट है, मैं कहता हूं दिस स्मॉल हाइट इज H, और ये जो बिगर हाइट है जहां से लेके जहां तक जो हाइट है वो आपकी क्या है, H, कैपिटल H, यू अंडरस्टैंड। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए आप। B तो दोनों का सेम होगा, विड्थ 180, तो ये आएगा 180, व्हाट इज योर HQ, 400 क्यूब/12,
माइनस स्मॉल बी, हाउ मच स्मॉल बी, देखिए ये 400 है टोटल, 20 माइनस जे करो, 20 माइनस जे करो, इनका विड्थ दिया है इसका फ्लेंज का 20 mm, तो क्या हो गया 40, तो 400 में से 40 निकाला कितना हो गया 360, ये आपकी आ गई हाइट। विड्थ तो इसकी सेम आएगी, दैट इज 180 इंटू 360 Q/12, यू अंडरस्टैंड। तो जहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लें, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका, I इज इक्वल टू, कैलकुलेट करें, दिस इज नॉट 180, सॉरी, टोटल था ये 180, जो 25 ये भी तो माइनस करना बीच में से, कितना हो जाएगा 155, दिस इज 155/12, यू अंडरस्टैंड। This is equal to 3573640, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 35736, इधर लिख लीजिए I 35736, ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 35736, यू अंडरस्टैंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आ गया, जहां पे आई सेक्शन का कैसे निकालते हैं, बिगर रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोर्शन का जो आई सेक्शन का पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा, जो बिगर रेक्टेंगल है उसका जो विड्थ और डेप्थ वो तो सेम रहेगी, बट व्हेन वी विल कम टू द स्मॉलर रेक्टेंगल, उसमें विड्थ आपकी आएगी जहां से लेके जहां तक, और टोटल विड्थ है आपकी अगर 400, दिस इज 20 mm, दिस इज 20 mm, मींस 40 mm, ये आपका क्या होगा लेस हो जाएगा, तो डेप्थ आपकी कितनी हो जाएगी 360 mm। अब विड्थ टोटल कितनी है जहां से लेके जहां तक 180 है, बट ये पोर्शन हमें माइनस करना पड़ेगा, सो 180 माइनस 25 दैट इज 155, यू अंडरस्टैंड। तो इनको ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग इट लाइक ए हालो रेक्टेंगल, ये आपकी जैसे हालो रेक्टेंगल है उस केस उस जैसा हम इसको ट्रीट करेंगे आई सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन का निकालना है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट, यू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने जहां पे नोट कर लिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इसमें जो मेन एक चीज और वो मैंने नोट करके जहां पे लिख लिया, अब हमें निकालना है ए बाई बार, राइट, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है टाउ का वो क्या है, एस इंटू ए, ये फार्मूला है। वी हैव कैलकुलेट, एस हमने निकाल लिया, आई हमारा आ गया, बी हमारा कितना है 180 होगा, बी हमारा है, विड्थ तो आपका जो है बिगर विड्थ लेंगे हम, दिस इज 180, तो आई हमारा आ गया। विड्थ हम कौन सी देंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस है ना, इसके ऊपर निकालने हैं, तो इसके ऊपर कौन सा विड्थ है, ये 25 mm, तो बी हम ले लेंगे इधर से 25 mm, विड्थ एट द न्यूट्रल एक्सिस मींस विड्थ ऑफ द बैक वी विल टेक हियर। अब ए बाई बार वी हैव टू कैलकुलेट, ए बाई बार
तो देखिए ए बाई वार को अगर मैं इसको दो एरिया में एक पोर्शन ले लेता हूं, ये पोर्शन 1 एंड ये पोर्शन 2। इस पोर्शन 1 का जो एरिया है वो ले लेता हूं मैं A1, और जो इसका सेंट्राइड न्यूट्रल से जे आपका सेंट्राइड है इसका, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका Y1 बार। जे डिस्टेंस आपका आ जाएगा क्या, जब ये बाद में लिखते हैं, तो ए वाई बार दिस इज इक्वल टू A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार, राइट। तो पहले देखिए आप A1 क्या है, व्हाट इज A1? A1 यू राइट डाउन, देखिए A1 मींस एरिया ऑफ दिस, ये जो ऊपर वाला है इस एरिया को मैंने एरिया A1 लिया है, यू अंडरस्टैंड। ये जो फ्लैंज है इसका एरिया मैंने A1 लिया है, और ये जो वेब का पोर्शन है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इसका जो एरिया है मैं A2 लिया है। तो मींस मैं ये जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो आपका शेडेड पोर्शन है, दिस आई हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली इनका एरिया भी डिफरेंट होगा, A1 भी डिफरेंट होगा, A2 भी डिफरेंट होगा, और Y1 और Y12 की Y1 बार और Y2 बार की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो पहले हम कर लेते हैं A1, जहां से कर लीजिए आप A1 क्या आ गया आपका 120 इंटू 180 इंटू 20, ये आ गया A1। अब मैं निकालना है Y1 बार, इसे देखिए अब Y1 बार, देखिए ये आपका सेंट्राइड है, हम क्या लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस से उस एरिया का जो सेंट्राइड होगा वहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द, ये आपका आ गया C1 सपोज दिस सेंट्राइड, राइट। तो इस जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है मींस जे डिस्टेंस आपका Y1 बार, यू अंडरस्टैंड। तो Y1 बार कितना होगा, देखिए न्यूट्रल एक्सिस, ये टोटल डिस्टेंस था आपका 360, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका 400 था, 20 और 20 माइनस किया तो ये बीच वाला डिस्टेंस बना 360। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, सेंटर के ऊपर होगा, सो इट मींस दैट इस पार्ट का डिस्टेंस 180 और इस पार्ट का जहां से न्यूट्रल एक्सिस से जहां तक 180 होगा, यू अंडरस्टैंड, जहां से 180, तो जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना 180। अब इसका थिकनेस कितना है फ्लैंज का 20, सेंट्राइड इसके बीच में होगा, इसका मतलब जो सेंट्राइड का डिस्टेंस होगा, जहां से सेंट्राइड का जो डिस्टेंस होगा वो कहां पे कितना होगा 10 mm, ठीक है। तो Y1 बार का क्या वैल्यू आएगा 180 प्लस 10 मीन्स 190 mm, यू अंडरस्टैंड। Means J distance from the neutral axis to C1, this distance is Y1 and this is equal to 190 mm. You understand this? अब आ जाइए आप A2 के ऊपर। A2 क्या होगा, ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया ये होगा, जहां से लेके जहां तक कितना डिस्टेंस है 180 इंटू 25, वेब थिकनेस कितनी है 25, यू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताइए सिर्फ मैं जे वाला एरिया ले रहा हूं, दिस एरिया आई एम जस्ट टेकिंग, तो इसका जो सेंट्राइड होगा इस एरिया का, इस जहां पे सेंट्राइड में होगा इसका कहां पे होगा, जे सेंट्राइड होगा C2। अब देखिए टोटल यहां से लेके जहां तक हाउ मच इज दिस डिस्टेंस 180, तो इसका हाफ कितना होगा 90। तो मींस कहने का मतलब जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है आपका इस एरिया का, दिस इज कॉल्ड Y2 बार, यू अंडरस्टैंड। अगर टोटल आपका 180 है, हाफ कितना होगा 90, राइट। तो Y2 बार कितना आ गया 90। ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर होगी आपको। हमने क्या निकालना था, स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इंटेंसिटी एट द आई सेक्शन। सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, हमने न्यूट्रल एक्सिस लिया, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो शेडेड पोर्शन एरिया दिस आई हैव टेकन,
तो जहां पे जो विड्थ है, जहां पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो विड्थ है, दिस इज द विड्थ ऑफ द वेब। तो बी की वैल्यू हमारी आ गई 25 mm। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए वाई बार एज वर फार्मूला। बट ए क्या था, दिस एरिया कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, जो मैंने जहां पे किया, एक मैंने फ्लैंज वाला एरिया अलग कैलकुलेट किया और एक आपका वेब वाला एरिया डिफरेंट कैलकुलेट किया, और दोनों का सेंट्राइड से अगर मैं एरिया A1 की बात करूं फ्लैंज का, तो इसका जो y1 बार होगा वो जहां से लेके जहां तक होगा, जहां से लेके जहां तक 180 है आपका, और 20 इसका थिकनेस है, तो ये सेंटर में होगा, तो 180 प्लस 10, दिस इज 190। यू अंडरस्टैंड। और ये जो एरिया है A2 मैंने एरिया लिया है, इसका जो y2 बार होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस, तो जहां से लेके जहां तक कितना 180 है, तो इसका सेंटर होगा 90 mm। समझ आ गया। आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, आप सारी चीजें इसमें पुट कर लो एंड यू गॉट आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर लो सीधे, पहले ए वाई बार ही निकाल लें, ए वाई बार A1 y1 बार प्लस A2 y2 बार। यू अंडरस्टैंड। आप कर लीजिए, A1 क्या था 180 इंटू 20 एंड व्हाट इज 190, दिस इज 190 प्लस 180 25 एंड इंटू 90। कैलकुलेट करो ए वाई बार। $108,900। So this is 108,900। यस, तो ये आपका आ गया ए वाई बार। यू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरीके से आपने आई का वैल्यू भी फाइंड आउट किया है, वो लिखा है वहां पे। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लो। अब टाउ इज इक्वल टू, सारी वैल्यू हमने निकालनी है। एस हमारा कितना है 400 किलो न्यूटन, तो ये आ जाएगा 400 10⁻³ राइट। एंड ए वाई बार, this we have calculated 10,10,89,000 divided by what is b I क्या है 35736 and 40, and what is your v, this is 25 right। तो निकाल लीजिए आप। सो टाउ इज हाउ मच, टेल मी द वैल्यू ऑफ टाउ। सो दिस इज 48.75 48.75। से टो मैक्स भी लिख सकते हैं, टो मैक्स। तो
ये आपका क्वेश्चन आ गया आपका आई सेक्शन का। तो इसमें हमने वेरियस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स थे आपके डिफरेंट टाइप के, हमने कोशिश की है कि हर टाइप का न्यूमेरिकल आपका जहां पे आ जाए कि शेयर फोर्स, समटाइम्स द शेयर फोर्स इज नॉट गिवन टू यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स, तो उसको भी किस तरीके से कैलकुलेट करना है बाई यूजिंग द शेयर फोर्स डायग्राम। और रेस्ट हमने सारे क्रॉस सेक्शन लेके जहाँ पे ले लिए है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी हमने क्वेश्चन निकाले, आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी और आपका आई सेक्शन क्रॉस सेक्शन का भी। यही 3-4 क्रॉस सेक्शन है। टी सेक्शन का सेम है। टी सेक्शन के केस में ओनली दिस पोर्शन इज नॉट देयर, रेस्ट एवरीथिंग इज अप टू दैट, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल सेशन था इसमें हमने कोशिश किया है कि हर किस्म का न्यूमेरिकल करें, और जो न्यूमेरिकल इसी किस्म के न्यूमेरिकल जो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस होंगे उसी में आते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो आज का जो न्यूमेरिकल सेशन है ये दिस इज ओवर, और जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, यू अंडरस्टैंड, शेयर सेंटर के ऊपर। ये आपका नया सिलेबस में ऐड हुआ है शेयर सेंटर, और इसको मैं कोशिश करूंगा काफ़ी डिटेल में देने के लिए। शेयर सेंटर से पहले हम शेयर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल शेयर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, और दिस इज द न्यू टॉपिक यू कैन से विच इज एडेड रिसेंटली इन द सिलेबस। तो इस टॉपिक के ऊपर वी विल ट्राई टू गिव ए वेरी गुड लेक्चर, तो इसके लिए आप अटेंटिव रहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो शेयर सेंटर के ऊपर होगा, वो देखेंगे, क्योंकि शेयर सेंटर शायद एक लेक्चर में ख़त्म ना हो तो उसके लिए 2 लेक्चर देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल शेयर क्या है, देन शेयर फ्लो के बारे में क्या है, एंड देन वी विल लास्टली वी विल कम टू द शेयर सेंटर। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट दैट डिपेंड्स दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक। और उसी तरीके से हम लेक्चर का जो है डिवीजन करेंगे। अगर एक लेक्चर में होगा, मोस्टली एक लेक्चर में होगा, तो आई विल ट्राई टू फिनिश in one lecture, you understand. So thank you very much, this is enough today, and next as I told you अगला जो लेक्चर होगा वो शेयर सेंटर के बारे में। थैंक यू।